نئے ڈی پی او عبداللہ لک کے لیے اس وقت بڑے چیلنج کیا ہوں گے اور کیا اصلاحات آپ چاہتے ہیں کہ بھکر پولیس میں ہوں تو بہتری آ سکتی ہے؟ ایک جذبہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بکھر کی پبلک کے لیے خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، ہونا بھی ایسے چاہیے، اور ہمیں ان سے بہت زیادہ امیدیں بھی وابستہ ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ پبلک کا یہ بھی گلہ ہے کہ تھانہ کلچر میں بھی تبدیلی نہیں آئی، کرپشن کا وہاں جو ہے شکایات ہیں تھانے میں، اور دیکھیں پولیس کو تفتیش کی مد میں کتنے فنڈ ملتے ہیں، پیٹرول کی مد میں کتنا فنڈ ملتا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی مراد ہیں، اس کے باوجود بھی یہ بہت ساری چیزیں تعطل کا شکار ہوتے ہیں۔ ملک صاحب، اس میں انہیں دیکھا کہ ابھی تک بھی لوگ تھانوں میں جاتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں، سزا جزا کا عمل ضرور ہونا چاہیے۔ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم یہ ڈی پی او صاحب نے خود کرنا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے اس چیز کو آن کیا ہے اور آتے ہی انہوں نے خود کہہ دیا، بہت بڑی بات ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے، کہ اپنے شہداء کو بھی اکاموڈیٹ کر رہی ہے، غازیوں کو بھی کر رہی ہے، بہت کچھ ویلفیئر بھی کر رہی ہے، لیکن امیج نہیں بن رہا۔ عوام اور پولیس کے فاصلے کم نہیں ہو سکتے۔ پبلک میں ان ہو، پبلک کو سنیں، چاہے جیسے ان کا کھلی کچہریوں کا مشہور ہے یا ویسے دیگر پلیسز پہ پبلک کو سنیں گے تو پبلک ہمارے علاقے کی زیادہ پسند کرتی ہے کہ انہیں موقع دیا جائے۔ تھانوں میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی بہتر نہیں ہے، مایوس کن ہے بھکر کے لوگوں کے لیے۔ 15 کال پہ سر رسپانس ہی نہیں آتا۔ صحیح، بالکل۔ گھنٹے گھنٹے بعد پولیس پہنچتی ہے، جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تہ تک رپورٹ کس نے دے دی ہے؟ بڑی سیکورٹی برانچ ملک صاحب بہت اہمیت کا حامل ہے، ہاں، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو یہاں متحرک اور منجھے ہوئے عملہ بھی ہونا چاہیے، افیسران بھی ہونا چاہیے۔ اپلیکیشن جاتی ہے، درخواست دے دیتا ہے مدعی، اس کو رسپانس نہیں ملتا، 2-4 دفعہ انہیں چکر لگانے، بندہ 15 کلومیٹر دور سے آتا ہے، وہ کتنی دفعہ آئے گا؟ یہاں کون سے جھگڑے ہوتے ہیں؟ گھریلو ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، محلے داری کے ہوتے ہیں، علاقہ داری کے ہوتے ہیں۔ ان جو مقدمات، ان کے مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری یہ بھی گزارش ہوگی ان کو کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، امن کمیٹی سے فیور دی جائے، مقامی کمیٹیاں اور بھی ہیں، سی پی ایل سی بھی ہے، تاجران بھی ہیں، سول سوسائٹی بھی ہے، معزز شخصیات بھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کے اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، تاکہ اس میں قوم کے وسائل بھی بچیں اور پبلک کو ریلیف ملے۔ عبداللہ لک صاحب سے جیسے پبلک میں جیسے ایک لہر دوڑی ہے نا، کہ ایک خوشی کی لہر آئی ہے کہ ان کے آنے سے پبلک کو بڑے ریلیف ملیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پبلک کے لیے بڑا جو ہے نا بڑے اچھے افیسر ثابت ہوں گے، اور پبلک ان سے خوش بھی ہوگی اور پولیس کا امیج بھی بحال ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ادریس عمران رانا، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بھکر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھکر پولیس کے حوالے سے، اہمیت کا حامل ہے ضلع میں پولیس کا محکمہ، اسی بارے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ بھکر میں نئے تعینات ہونے والے نوجوان کمانڈر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر عبداللہ لک نے اپنے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھال لیا ہے، اور آج پہلے ہی روز جو ہے انہوں نے اپنے آفس کے تمام برانچز کا معائنہ کیا، تمام لوگوں سے میٹنگز کی، تعارف بھی ہوا۔ اس کے علاوہ ایس ایچ اوز، ایس ڈی پی اوز سے بھی آج میٹنگ طے تھی جو کہ ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جو بھی نیا ڈی پی او تعینات ہو کے آتا ہے تو سب سے پہلے 2 دن اسے گزر جاتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تعارف کے حوالے سے، میٹنگز کے حوالے سے۔ حیران کن امر میں دیکھ رہا ہوں، آج ایک بڑی تبدیلی نظر آئی مجھے کہ پہلے ہی روز کھلی کچہری میں عوام کے مسائل بھی سنے گئے، اور حالانکہ یہ چیزیں بات کی ہوتی ہیں، مگر آج عوام کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی، لوگوں کو اہمیت دی گئی، ان کے مسائل بھی سنے گئے۔ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے، چونکہ ماتحت افسران جو پولیس افسران تھے، ایس ایچ اوز تھے ضلع بھر کے تھانوں کے، ان سے بھی اہم میٹنگ ہوئی، اور پہلا حکم جو انہوں نے جاری کیا اس میں پولیس ورکنگ کو مانیٹر کرنے کے لیے لاہے عمل جو ہے وہ ایک ترتیب دیا جا رہا ہے، جس کی نگرانی جو ہے وہ ڈی پی او صاحب خود کریں گے۔ یہ ان کا پہلا حکم تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ افسران و اہلکار خود کو عوام کا خادم سمجھیں،
फौरी इंसाफ, मजलूम की फौरी दाद रसी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हमने आवाम के लिए आसानियां पैदा करनी है, ये कहना था नए डीपीओ अब्दुल्ला लक साहब का। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हस्बे साबिक सीनियर तजियाकार तारिक हमीद मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त को टाइम देने का। मलिक साहब, आपकी बतौर साफ़ी पुलिस वर्क पर गहरी नज़र है, कहाँ कहाँ खामियां हैं नए डीपीओ अब्दुल्ला लक के लिए? इस वक्त बड़े चैलेंज क्या होंगे और क्या इस्लाहात आप चाहते हैं कि भक्कर पुलिस में हो तो बेहतरी आ सकती है? बहुत शुक्रिया अदरीस भाई। देखिए, आज डीपीओ साहब जैसे ही मैं रात को पहुँचे हैं तो अब्दुल्ला लक साहब की जो सुबह से जो शुरुआत हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई वक्त ज़ाया करना चाहते। इतनी जल्दी तारफी मीटिंग होना, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब से, डीएसपी साहबान से, एसएचओ साहबान से, फिर ऑफिस के तमाम अमला से, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने एक दिन में, जैसे हम पहले देखते थे कि 2-3 दिन में ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो उन्होंने बड़ा टाइम को सेव किया है। तो यहाँ उनका हमें एक जज्बा नज़र आ रहा है कि वो बखर की पब्लिक के लिए खिदमत का जज्बा भी रखते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं, होना भी ऐसे चाहिए, और हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं। लेकिन अदरीस भाई, आईजी साहब ने बहुत बड़े इक़दाम उठाए हैं और वो सोशल मीडिया पे हमें नज़र भी आए हैं, परवान भी चढ़े हैं, कई ज़िलों में चढ़े होंगे। अगर मैं बखर की बात करूं तो बखर की पब्लिक को वो नज़र नहीं आए। आईजी साहब के जितने भी इक़दाम हैं, यहाँ उन्हें कोई पजीराई नहीं मिली, उन्हें हतमी शक्ल नहीं दी गई, सिवाय देखें पब्लिक में। हम क्योंकि पब्लिक की बात करें, पब्लिक में ये है कि खिदमत मरकज़ जो है वो फंक्शनल ज़रूर हुआ है, लेकिन पब्लिक का ये कहना है कि उसके पसे पर्दा पुलिस को यहाँ से फंड जनरेट होते हैं, तो इस वजह से उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। जैसे लाइसेंस की में फीसें होगी, दीगर हो गए मुकदमात की, तो वहाँ पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलता उस हवाले से कि अच्छा है, उन्होंने सराहा पब्लिक ने इसको। फिर देखें, पब्लिक का ये भी गिला है कि थाना कल्चर में भी तब्दीली नहीं आई, करप्शन का वहाँ जो है शिकायत हैं थाने में। और देखें, पुलिस को तफ्तीश की मद में कितने फंड मिलते हैं, पेट्रोल की मद में कितना फंड मिलता है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी मुराद हैं, उसके बावजूद भी ये बहुत सारी चीजें तातल का शिकार होते हैं। मलिक साहब, उसमें उन्हें देखा कि अभी तक भी लोग थानों में जाते हुए खौफ महसूस करते हैं। है इसी तरह। देखिए, वही मैं बात कल्चर की कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ डीपीओ साहब आए, जो अच्छा काम करे उन्हें सर्टिफिकेट इनामात से नवाजा जाए, मगर कल्चर में भी तब्दीली अदरीस भाई बहुत जरूरी है। और पुलिस में जो लोग करप्शन में मुलविस हों उन्हें सजा भी दी जाए, जो अच्छा काम करें उन्हें इनामात से भी नवाजा जाए। और इस तरह के अगर इक़दाम उठाएंगे तो आम आदमी जो है उसका एतमाद भी बढ़ेगा और वो इत्मीनान का भी इजहार करेगा। सजा जजा का अमल जरूर होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ये डीपीओ साहब ने खुद करना है। जैसे आपने बताया कि उन्होंने इस चीज को ऑन किया है और आते ही उन्होंने खुद कह दिया, बहुत बड़ी बात है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए। अच्छे काम करने वाले की हौसला अफजाई हो, जिसकी शिकायत हो उसको सजा हो। जो लोग महकमा की बदनामी का बायस बनते हैं उनके साथ खुद तसाबी का अमल हो, तो मेरा ख्याल में पुलिस की रिस्पेक्ट भी होगी और आम पब्लिक भी उससे खुश होगी। और दूसरा, पुलिस वेलफेयर के लिए अच्छे से अच्छे इकदाम उठाने चाहिए। पुलिस की फलाह बहबूद के लिए बेशक हम इसके हामी करने चाहिए। जैसे शौदा और गाजियों के लिए इकदाम उठाए गए, करोड़ों रुपए के फंड भी दिए गए, घर भी दिए गए, तो लेकिन पब्लिक में फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद पब्लिक में इमेज बहाल नहीं हो सकता। देखिए ना, पुलिस क्या कर रही है कि अपने शौदा को भी अकोमोडेट कर रही है, गाजियों को भी कर रही है, बहुत कुछ वेलफेयर भी कर रही है, लेकिन इमेज नहीं बन रहा। अवाम और पुलिस के फासले कम नहीं हो सकते। इन सब इसमें सबसे ज्यादा यही होगी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर हैं अब्दुल्ला लक साहब, वो खुद दिलचस्पी लेंगे और साथ साथ हम ये भी गुजारिश करेंगे कि वो पब्लिक में इन हो, पब्लिक को सुने, चाहे जैसे उनका खुली कचहरियों का मशहूर है या वैसे दीगर प्लेसेस पे पब्लिक को सुनेंगे तो पब्लिक हमारे इलाके की ज्यादा पसंद करती है कि उन्हें मौका दिया जाए। तो इस तरह के इनिशिएटिव होंगे तो उससे बहुत ज्यादा पब्लिक को रिलीफ भी मिलेगा। उसमें मलिक साहब ये आप देखें ना, थानों में इस वक्त
जो सूरत हाल है वो कोई इतनी बेहतर नहीं है, मायूस कुन है भक्कर के लोगों के लिए। देखें, इंसाफ, लोग जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, FIR तक दर्ज नहीं होती, एक दरख्वास्त पे जो है वो बाकायदा जी वो उसकी इंक्वायरी हो रही है, इस सिलसिले में बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि लोग थानों का रुख ही नहीं करते। थानों की जिस तरह तज़ीनो एरैश की गई है IG साहब के हुक्म पे, जिस तरह की सहूलियात दी गई हैं, उसी तरह देखें अमला का बाखलाक होना वहां जरूरी है। SHO और इंस्पेक्टर लेवल की जो पर्सनैलिटीज हैं वो एक्सपीरियंस भी हों और हमारी पब्लिक को भी समझती हों और अच्छी डील उनकी नजर आए, ताकि पब्लिक खुश हो। जो बेचारा मजलूम आता है, जिसका मसला होता है, जो मुद्दाई होता है, उसे सिर्फ दो, जिस तरह उनके पास इतना अच्छा सिस्टम है, बिठा के बात सुन ली जाए तो आधा उसका टेंशन दूर हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, जो 15 कॉल है उससे अब लोग बड़े परेशान हैं, उसको वैल्यू नहीं देते। उसकी क्या वजूहत है? 15 कॉल पे सर रिस्पॉन्स ही नहीं आता। सही, बिल्कुल, घंटे घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। अब 15 पे अगर घंटे के बाद पुलिस पहुंचेगी तो आगे क्या रिजल्ट होगा? सही, पब्लिक में फिर वही शिकायती होगा, मुद्दाई जो भी खड़ा होगा जिसके साथ वकूआ है, तो वो उसका एतमाद उठ जाएगा। इसी तरह जिस तरह सिक्योरिटी ब्रांच है, फिर सिक्योरिटी ब्रांच को भी फील्ड में काम उनका नजर आना चाहिए। यहाँ पब्लिक के लिए देखें जराइम क्यों बढ़ रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तह तक रिपोर्ट किसने दे दी? बड़ी सिक्योरिटी ब्रांच मलिक साहब बहुत अहमियत का हामिल है। हाँ, रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ मुतहरिक और मंझे हुए अमला भी होना चाहिए, अफीसरान भी होना चाहिए, जो जिनका असर रसूख जिला में पब्लिकली भी होना चाहिए। तो इस तरह की वो जो अफीसर आएंगे तो वो ज्यादा इसको कंट्रोल भी करेंगे। हमारा जिला है कितना छोटा सा एक जिला है, उसमें क्राइम रेशो कितनी है, इसको चेक करना को मेरे ख्याल में इतना बड़ा बात नहीं है। और क्राइम सीन यहाँ क्या है, डकैती या चोरी की वारदात होती है। और सब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल यहाँ बहुत बेहतर है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ही नहीं, अमन अमान का मसला है नहीं, बहुत बेहतर है हमारा जिला। हाँ, और दूसरा सोशली तो जो है ना पुलिस दिखा रही होती है, सोशल मीडिया पे नजर आ रहा होता है, लेकिन पब्लिक को उतना रिजल्ट भी मिलना चाहिए कि कार्रवाइयां या मुकदमात नजर आ रहे होते हैं कि ये कर दिया गया, ये पकड़ दकड़ है, लेकिन जो मुद्दाई होता है फरीक, उससे बड़ा मसला रहता है। और दूसरा असल जो ज्यादा शिकायत है वो क्या है अदरीस भाई? एप्लीकेशन जाती है, दरखास्त दे देता है मुद्दाई, उसको रिस्पांस नहीं मिलता, 2-2, 4-4 दफा उन्हें चक्कर लगाने। अब एक बंदा 15 किलोमीटर दूर से आता है, वो कितनी दफा आएगा? इसी तरह तफ्तीशी का भी काम है कि वो टाइम रखता है, दूसरा फरीक नहीं आता। ऐसे तो नहीं होता कि पुलिस का कोई पाबंद ना हो। तो अवाम को जो है ना उनकी दहलीज पे इंसाफ फराहम करना, ये पुलिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो जिस तरह DPO साहब का, फिर मैं कहूंगा कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। दीगर महकमों में एप्लीकेशन होती है, आप ऑनलाइन चेक करा सकते हैं कि स्टेटस क्या है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, जिस वजह से साइल को बड़ी तंगी होती है। बाज फोनों पे रिस्पांस नहीं मिलता, उन्हें थाना खुद जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जिला बहुत बड़ा है और फासले बहुत ज्यादा हैं थानों से। लोग दूर दराज से आते हैं, उनका वक्त भी लगता है, उनका किराया भी लगता है, उनका टाइम भी जाया होता है। तो पुलिस का जो निजाम है इससे सेट करना होगा जो खामियां हैं वो। और दूसरा, हमारा जिला पुरअमन है अदरीस भाई। सबसे अहम मैं जो आपको बात करने लगा, यहाँ कौन से झगड़े होते हैं? घरेलू होते हैं, खानदानी होते हैं, मोहल्लेदारी के होते हैं, इलाकादारी के होते हैं। इन जो मुकदमात, इनके मुकदमात दर्ज नहीं होने चाहिए। हमारी ये भी गुजारिश होगी DPO साहब, इनको किसके हवाले करना चाहिए? देखिए, अमन कमेटी से फेवर दी जाए, मकामी कमेटियां और भी हैं, CPLC भी है, ताजनान भी है, सिविल सोसाइटी भी है, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी हैं, उनसे फायदा उठा के असेंबली है और ये छोटे छोटे मसाइल, ताकि इसमें कौम के वसाइल भी बचें और पब्लिक को रिलीफ मिले। तो हमें DPO साहब से बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह उनके आज हमने देखा है कि फर्स्ट डे जिस तरह गुजरा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पब्लिक मायूस होगी। साबिक़ा दौर में कमियां हमें देखने को मिली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भरपूर अंदाज से जो है पब्लिक को रिलीफ भी मिलेगा और अवाम को उनकी दहलीज पे इंसाफ भी मिलेगा। और पुलिस अवाम के जान माल और के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है और ये किरदार भी हमें देखने
देखने को मिलेगा। मलिक साहब देखें, कि मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि सिफारशी कल्चर बहुत ज़्यादा है। सिफारिश पे फलां SHO लग गया, सिफारिश पे फलां सिक्योरिटी एहलकार जो है फलां थाने में तैनात हो गए। इसका भी तदारुक होना चाहिए। मेरिट पे पुलिस ऑफिसर जो है वह SHOs लगाए जाने चाहिए। हमने देखा गुज़श्ता अदवार में जो है बरामदगियाँ, जैसे आप चोरी डकैती की वारदातें, ज़्यादातर हमारे पास यही है ना, चोरी डकैती की वारदातें, जराइम की शरह तो यही है ना हमारी, चोरी डकैती की वारदातें। चोरी डकैती की वारदातों में फर्जी बरामदगियाँ, ये बड़ा सबसे बड़ा मसला है मलिक साहब, इसको हमें देखना होगा। देखो ये जब एक कमांडर आया बैठा होता है ना, तो कमांडर के आने से ही पता चलता है। आपको अब्दुल्ला लक साहब से जैसे पब्लिक में जैसे एक लहर दौड़ी है ना, कि एक खुशी की लहर आई है कि उनके आने से पब्लिक को बड़े रिलीफ मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक के लिए बड़ा जो है ना बड़े अच्छे ऑफिसर साबित होंगे और पब्लिक इनसे खुश भी होगी और पुलिस का इमेज भी बहाल होगा। मलिक साहब, साबका दौर में अगर मैं ये कहूँ कि पुलिस पर से अवाम के एतमाद में कमी देखने में आई है, फासले बड़े हैं, क्या अब्दुल्ला लक साहब नौजवान जो है कमांडर हैं पुलिस के, यंग हैं, बड़ा जज्बा है, अवाम का एतमाद बहाल कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। असल में ना अदरीस भाई, फिर मैं वही कहूँगा कि हर कमांडर का अपना तरीका कार होता है। साहब का अगर हुए हैं तो उन्होंने कोशिश की है कि अपने अंदाज से उन्होंने काम लेने की कोशिश हर अफसर करता है, और कुछ हद तक हमें बेहतरी भी नजर आई, लेकिन उसका फायदा उठाया गया, उनकी थोड़ी नरमी का फायदा भी उठाया गया और कुछ अमला ने उसमें सुस्तियां भी की हैं, तो इस वजह से शिकायत भी नहीं है पब्लिक को। तो मुझे लगता है कि अब ये गैप नहीं मिलेगा और पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया तारिक हमीद मलिक साहब। नाजरीन, तो इस वक्त नौजवान हमारे कमांडर भक्कर पुलिस से आवाम को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ख़ासकर जो साइलिन हैं, इंसाफ के मारे मारे फिरते हैं, उन्हें जो है इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अब हमें घर की दहलीज पर इंसाफ मिलेगा और खुली कचहरियों का सिलसिला जो है वो हर तहसील सतह पर या थाने की सतह पर कम से कम जो है तहसील, अगर थाने की सतह पर नहीं हो सकता तो तहसील सतह पर लाजमी जो है वो खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि आवाम को घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम हो सके। जल्दी नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।